Our next topic is gas laws in this chapter. What is happening over here? As we know, for any gaseous substance, there are four parameters are very important. One parameter is its volume, temperature, pressure, and the quantity of gas. These four parameters, they are interdependent on each other. They are interdependent, and scientists since beginning they wanted to find out certain relationship between these parameters. What happens if we change the temperature, whether the volume changes or not? By changing pressure, whether the volume changes or temperature changes or not? Or by taking different quantity of the gas, what happens to the pressure, what happens to the volume, what happens to the temperature? They wanted to study. So regarding this, there was one scientist called Mr. Boyle. काफी सालों पहले की बात, 1662. Oh, how many years? 1662, 350 years before. 350 साल पहले ये बंदे ने ढूंढा है. उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मसालों की दुनिया में जीते थे ये लोग, तब उन्होंने ये डिराइव किया है. बराबर है. Scientist Robert Boyle carried out certain experiments to study the relationship between the pressure and volume for fixed amount of gas, and finally on the basis of experimental observation, the relationship between pressure and volume of gas was stated. Pressure and volume किस तरीके से? At constant temperature, the pressure of a fixed amount of gas varies inversely with its volume. We can understand this. Suppose मेरे पास यहाँ पे कंटेनर पे यहाँ पे गैस है, और अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, देन इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इसका नया वॉल्यूम इतना हो जाएगा. वॉल्यूम डिक्रीजेस. इफ यू इंक्रीज प्रेशर, वॉल्यूम डिक्रीजेस. सो इनवर्स, if you decrease pressure, volume increases. At constant temperature has to be constant, fixed amount of gas, the pressure of a gas varies inversely with its volume. Pressure is inversely proportional to V, or P is equal to K into 1 by V. If you bring V to this side, P into V equals to K. Okay, अगर V को यहाँ पे लेके आते हैं, मतलब क्या हुआ? One more topic we are understanding over here. So it is said that at constant temperature for fixed amount of gas, the product of its pressure and volume is constant. For fixed amount of gas, product of pressure and volume is बराबर है कि नहीं? Are you following me? Suppose at initial stage, constant temperature and fixed amount of gas heights its pressure. Suppose हमारा initially pressure P1 था and volume V1 था. Final pressure P2 बन गया और volume V2 बन गया. Then P1 V1 equals to K मिला and P2 V2 equals to भी क्या मिला? That's why P1 V1 equals to, because ये दोनों K मिल रहे हैं, because PV equals to K होता है. Even Boyle का relationships can be shown by a graph. अगर हम constant temperature ले लेते, at that temperature प्रेशर और ग्राफ का वॉल्यूम का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, they are inversely proportional. As volume increases, pressure decreases. बराबर? You can see that at different temperatures they are decreasing. Correct or not? Are you following this? Same way, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, प्रेशर वर्सेस 1/V. देखो यहाँ पे पहला जो हमने ग्राफ किया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम था. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एट ए गिवन फिक्स्ड टेम्परेचर. टेम्परेचर हैज टू बी कांस्टेंट. हाँ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो वैल्यू अलग आ जाएगी, फिर भी वो फिक्स, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दूसरा, आप
देखिए ये हमने देखा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या तो P इक्वल्स टू K इंटू 1/V. कैन आई राइट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम? I can say pressure is inversely proportional to volume, या तो pressure is directly proportional to inverse of volume. करेक्ट हो ना? तो यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया गया, प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए, क्या आपकी बुक में नहीं लिखा है? प्रेशर वर्सेस 1/V. कैन यू सी, देखो प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम 1/V भी बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो 1/V भी बढ़ता है. अच्छा, अलग अलग टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर T3 कांस्टेंट था तो ये मिला, T2 है तो ये मिल रहा है, T1 है तो ये मिल रहा है, बट याद रखना T3 हैज टू बी ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1. और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, हमने यहाँ पे ये चीज देखी थी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू K. आप चाहे कोई भी प्रेशर ले लीजिए, बट प्रेशर इनटू वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट. यू कैन सी दैट, देखो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज करेक्ट और नॉट at temperature T1. अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो आप, देन प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट. बाय द वे दिस, हमने ये तीनों ग्राफ जो ड्रॉ किए उसको बोलते हैं आइसोथर्म्स. व्हाई आइसोथर्म? बिकॉज दे आर बीइंग ड्रॉन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोथर्म. करेक्ट और नॉट? अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा ध्यान से देखेंगे. नाउ वी नो दिस, according to Boyle's law, pressure into volume equals to constant K. Now we also know this density equals to mass upon volume, so volume equals to mass upon density. Let's put this V over here, so P into m by d equals to K. और खाली D को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना के यहाँ पे लेके आते हैं, K को यहाँ पे लेके आएंगे, तो D equals to m by K into P. Now मास तो किसी भी सब्सटेंस का कांस्टेंट होता है, K भी कांस्टेंट होता है, तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा m by K इक्वल्स टू, हम K डैश लेते हैं, देन D इक्वल्स टू K डैश P, यानी कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. याद रखना, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो गैस की डेंसिटी बढ़ती है, कम करते हो तो कम होती है. एंड यहाँ पे जो D by P है इक्वल टू क्या मिलेगा? K डैश. सो देयरफॉर D1 by P1 इक्वल टू D2 by P2 कैन बी रिटन. सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर for a fixed amount of gas, the density of gas varies directly to its pressure. बराबर है, उसको भी अंडरलाइन कर देना. ये था हमारा बॉयल्स लॉ. ओके, एंड बॉयल्स लॉ के बेस पे हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल उन्होंने दिया, जरा समझ लेते हैं. इसीलिए सी लेवल पे जो डेंसिटी एंड प्रेशर की बात कर रहे थे, सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेरिक या तो 1 बार प्रेशर होता है. उस टाइम पे जो ऑक्सीजन की डेंसिटी होती है माउंटेन पे उससे काफी कम होती है. क्यों? क्योंकि माउंटेन्स पे क्या प्रेशर कम हो जाता है, एंड सिंस प्रेशर इज लेस देन ऑक्सीजन की डेंसिटी लेस हो जाती है. दैट्स हाउ वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ. बराबर है. ये लोग यहाँ पे माउंट आबू के बारे में बता रहे हैं, माउंट आबू पे इतना फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी उन्होंने बताया तो कोई बात नहीं. करेक्ट और नॉट?